what will be the component of E minus Q on this डायरेक्शन, ठीक है। तो उसका क्या होगा इधर, व्हाट विल द आंसर, कंपोनेंट ऑफ ई, E cos. हाँ थीटा, ओके। दिस बिकॉज इज वर्किंग ऑन डाउनवर्ड, सो वर्टिकल कंपोनेंट will be on this point is downward is sin theta, so it will be E minus Q sin theta. And again we'll talk about E plus Q. E plus Q का कंपोनेंट किधर होगा, इस साइड, लेफ्ट साइड, तो इसका क्या वैल्यू होगी, सेम कंपोनेंट E plus Q cos theta, and it working in upward direction, so its vertical component will be E plus Q sin theta, okay. This is the resolution of the electric field along the horizontal direction. This is the horizontal. This is the horizontal direction. Horizontal, and this is the vertical. Okay. This is the vertical direction. Okay. So we can make another picture properly on it. Okay. So we can make, this is the P point. Okay. This is the P point. So there will be, what component is E plus Q sin theta and E minus Q sin theta, like this, okay. And horizontal component is the sum of, okay, is the sum of, there is a E plus Q cos theta and E minus Q cos theta, okay. This is the vertical and horizontal component on P. Getting up not? This is the horizontal component of it. Only we have to consider only horizontal and vertical component here, okay. ये इसको भूल जाओ, इस फिगर को, जस्ट रिमेम्बर ऑन दिस फिगर राइट नाउ। उससे हमने ये बना लिया, ठीक है, उससे हमने ये बना लिया, ठीक है। अब हमें E plus Q and E minus Q चाहिए होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, so we need this direction, AP also need and BP, so we'll solve. So here E plus Q, E plus Q, what would be E plus Q? तो आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ओके। सो हियर 1/4 pi epsilon naught Q upon BP square, okay, getting, and E minus Q, same चीज, E minus Q 1/4 pi epsilon naught Q upon AP square, okay. So here AP is equal to BP is equal to, what would be the distance BP, applying Pythagoras theorem, okay, applying Pythagoras theorem on this triangle OPB, okay. So what is the PB is, this is the R under root R square plus A square, under root R square plus A square, so we can write it like this, R square plus A square, like this, okay, 1/2, रूट मीन्स 1/2, पावर जो होती है 1/2 होती है, okay. So here we can see E plus Q, so we can say, so we can see here E plus Q is equal to E minus Q, okay, is equal to 1/4
4 pi epsilon naught q upon this one square means AP square. This is the AP. So what will be the answer? R square plus A square. Okay. So we can see here vertical component आप देखोगे vertical component E plus Q sin theta E minus Q sin theta और E plus Q बराबर है आपके E minus Q के. Sin theta is the same. So these are working on a point equal amount but in opposite direction. So P में क्या होगा आपका वैल्यू? Resultant electric field at P due to vertical components is 0. देख रहे हैं यहाँ, ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है P पे, ठीक है, और ये बराबर है दोनों. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? The resultant electric field due to vertical component is 0. Okay. So जो हमारा वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट से बन रहा था, बट हियर वर्टिकल कंपोनेंट इज 0, सो देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, सो देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो दिस इज द पॉइंट. ओके, अगेन पॉइंट वो क्या होगा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, द रिजल्टेंट electric field due to electric dipole is only due to horizontal component. Horizontal component. ठीक, गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है आपके? यस सर. बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण होगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई वर्टिकल इक्वेटोरियल इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. तो E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta. We can see here. Yeah, this one E plus Q cos theta and E minus Q cos theta. This is the okay. So we know that E plus Q is equal to E minus Q. So we can write here 2 E plus Q cos theta. Since E plus Q is equal to E minus Q. ठीक है. So we have to find out cos theta. Cos theta we have to find out. Okay. So first put the value of E plus Q. So we can put here 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square plus A square into cos theta. E plus Q, we can see here E plus Q value. E plus Q. This is the okay. Let equation 1. From equation 1. From equation 1. So we have to find out cos theta. Okay. Cos theta. So here I put 2 into Q 4 pi epsilon naught R square plus A square into cos theta. So you see in figure that this is the triangle A, P, this is the point O, B. This is the theta. This is the R, this is the A. So what is the cos theta? Cos theta is the base upon
हाइपोटोनिस, ठीक है। दिस इज द r square plus a square. So cos theta will be a divided by under root r square plus a square, or we can write like this, or cos theta is equal to a divided by r square plus a square whole power 1 by 2. Okay, we can write like this. So we put cos value of cos theta here. So we can get a r square plus a square 1 by 2. Here is a power 1. So when multiply, so power can be added. Okay. So we can write here q into 2. 2 come this side divided by, and power 1 plus 1 by 2. 1 plus 1 by 2. 3 by 2. Okay. 1 plus 1 by 2 is equal to 3 by 2. So it will become r square plus a square power 3 by 2. We know that q into 2a, we know that q into 2a is a p electric dipole. So we can put here 1 upon 4 pi epsilon naught p divided by, okay, we know that p is equal to q into 2a. We have read already. So it is E vertical. Okay, this is the E vertical. This is the magnitude. Okay, if we want to write, it is in vector form. So write E so we see here, we know that the direction of electric dipole is from minus q to plus q. माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो डायरेक्शन हमारा किधर होगा, पी की दिस डायरेक्शन. P is always from minus q to plus q. Okay, but here electric field is from left direction. रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आपकी, लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये किधर है, ये राइट डायरेक्शन में. तो हम इसको क्या लिखेंगे, P के अपोजिट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, P के अपोजिट, मींस वी राइट हियर minus P cap. Okay, so we write here E vertical is equal to minus P upon r square plus a square 3 by 2 P cap. This is the vector form. Okay, we assume something in this equation 2. This is the 3. In equation 2, if we assume that, we know that electric dipole is a very charges are apart from very small distance. A is very small compared to R. If यदि ऐसा है, if R is greater than A, then यदि कोई वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर करने पर वो वैल्यू और छोटी हो जाती है, ठीक, क्यूब करने पर तो और छोटी हो जाएगी. तो देन A square can be neglected compare of in the compare of R. Okay, in the compare of R. Okay, in the compare of R. So we can neglect. So A is put in equation 2, A square is 0. A square को 0 पुट कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू E
वर्टिकल इक्वल टू 1 अपॉन P अपॉन R स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 0 इंटू पावर 3/2. Okay, so here E vertical is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R स्क्वायर. ठीक है, और ये पावर क्या होगी 3/2. अब जो पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जैसे A की पावर m इंटू n है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर A m क्रॉस n, ये हो जाएगी आपकी. ठीक है, m क्रॉस n. So we can further solve it. E vertical is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square into 3/2. 2 is cancel out. What would be the answer? This is the answer. Okay. This is the answer for a small dipole. ये किसके लिए है? For a Small small dipole. Okay. Electric field lines. Electric field lines. Okay. Electric field lines. तो ये क्या होती है? कर्व होती है एक तरह से. ठीक है, कर्व होती हैं. तो जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बाहर जाएंगी, नेगेटिव से अंदर आती हैं. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लिखेंगे. ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move would tend to move when free to do so in an इलेक्ट्रिक फील्ड. हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि मूव करो. ठीक है, सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field. At that point. इसमें देखो कह रहा है the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field and the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी? जब भी हमें किसी कर्व में किसी की डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं. ठीक है, सो ये कर्व किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक
फील्ड का देगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का देगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर एक ग्राफ करके, ये ऐसे है, ठीक है, दिस इज द, तो एक हमारा क्या है, कोई पॉइंट P है, ठीक है, एक Q है और एक R ले लिया हमने। सो P पे यदि हमें ये कर्व है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स है, तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो P पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। P पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ये ऐसे होगा, P पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बिल्कुल टच करते हुए, ठीक है, बिल्कुल टच करते हुए। ये अभी सही से बना नहीं है, एक मिनट, ये अभी सही से बनाना है। P पे आपको टेंजेंट डालना है, ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे डाल कर, इसको इसको इसी से टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए, ऐसे करते हुए, ये EP हो जाएगा, ठीक है, EP, दिस इज द EP। Q पे ऐसे टेंजेंट, ये दिस इज द EQ। R पे ऐसे टच करते हुए ER। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ओके, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज of electric line of force, electric lines of force, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो इसमें क्या कर रहा है, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक चले, फिर यहाँ पर ब्रेक हो जाए उसके बाद फिर यहाँ से चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्मूथ कर्व होगा, बिल्कुल स्मूथ कर्व ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस विल बी ओके, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, ओके, दिस स्मूथ कर्व, ब्रेक नहीं होगा, सीधा चलता जाएगा। सेकंड, the lines of force, the lines of force start at positive charges, and end at negative charges, negative charges, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे एंड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इट मींस मेन पॉइंट यहाँ पर वी हैव टू अटेंशन, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन नॉट फॉर्म closed loops, closed loops, okay, they cannot form closed loops if there is a single charge, there is a single charge, then the lines, then the lines of force will start or end
एट इन्फिनिटी। देखो पहले समझते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो हम बात करें यदि पॉजिटिव चार्ज से, तो इसमें क्या परपेंडिकुलर ऐसे बहुत सारी चार्ज फील्ड निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज, दिस इज द सिंगल चार्ज, देन दी लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ से अब पता नहीं कहाँ जा रही है, यहाँ से गई, वी डोंट नो वेयर इज गया, तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी में गई। यदि नेगेटिव है तो इट विल कम इन्फिनिटी। ओके ओके गेटिंग। अब कह रहा है कि दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, लूप बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर जाएगा और नेगेटिव में अंदर आएगा। जब पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे हो जाएंगे तो वहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, सो दे विल नॉट मेक ए क्लोज्ड लूप, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो ये इन्फिनिटी हम मान लिया कि कहाँ से जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी की तरफ, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, और ये कहाँ से आ रहे हैं, मान लिया इन्फिनिटी से आ रही हैं। ठीक है, like that. Okay, so third point, the tangent, the tangent to a line of force, to a line of force at any point, at any point gives the direction of the electric field at that point. ये तो हम डिस्कस चुके हैं कि टेंजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बताता है एट दैट पॉइंट। दिस इज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस हियर, fourth properties, very important. No two lines of force can cross each other, no two lines of force can cross each other। ठीक है, तो इसका रीजन पूछा जाता है, रीजन क्वेश्चन, रीजन व्हाट इज द रीजन। ओके, सो व्हाट रीजन क्या होगा, देखो पहले समझा देता हूं मैं। ठीक है, यू कैन मेक इट दिस, ये है आपका एक कर्व। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स का कर्व है, एक कर्व आपका ऐसे आया। ठीक, दिस इज द कर्व, दिस इज द पॉइंट पी। ओके, सो अभी हमने लिखा है यहाँ पर द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी पे यदि हमें डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट डाल देंगे। तो यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसे डाल दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ई, हमने मान लिया ये क्या है, ई पी। ठीक है, दिस, और यहाँ पे एक, इस पर, इस कर्व पे डायरेक्शन चाहिए इसी पॉइंट पे, तो ये एक, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए, मान लो ई पी डैश। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं। क्यों, कि आप एक साथ या तो इधर जा सकते हो, सॉरी, या तो ईस्ट जा सकते हो या तो वेस्ट, एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं हम। ठीक है, तो एक पॉइंट पे केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, दो कभी भी नहीं हो सकती हैं। दिस इज द रीजन, तो हम लिख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, इफ दे इंटरसेक्ट, if they intersect
then there will be two direction. Then there will be two direction. Two directions. EP and EP dash. Okay. And hence two directions. Two directions. Two directions of the electric field at the same point. At the same point. Which is not possible. कि एक साथ आप लेफ्ट या राइट एक साथ नहीं जा सकते, क्यों पर्टिकुलर मतलब एक बार लेफ्ट चले जाओ एक बार राइट, मतलब एक साथ नहीं जा सकते कि दोनों तरफ जा मूव कर सको आप. दैट इज द सेम लॉजिक वी हियर, विच इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, getting or not here, this one very important points. Yes. Okay, fifth point. The lines of force are always normal to the surface of a conductor on which the charges are in equilibrium. Equilibrium. तो उसमें क्या कर रहा है कि जो कंडक्टर है उसमें कैसे होते हैं, हमेशा नॉर्मल होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, इसका रीजन क्या है, यदि ऐसा नहीं है तो नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, we will discuss here. Okay, it's very important point. If the lines of force are not normal to the conductor, the component of the field E, यदि आपका नॉर्मल नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल होगा. E parallel to the surface would cause the electrons to move and would set up a current
on the surface. On the surface, but no current flows. But no current flows in the equilibrium condition. ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यदि हमारा नॉर्मल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल होगा, यदि पैरेलल होगा तो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द चार्ज फ्लो पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। जो चार्ज फ्लो करता है पर सेकेंड उसको हम क्या बोलते हैं? करंट बोल देते हैं। करंट नथिंग बट चार्ज ओनली। जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब चार्ज मूव में है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो जब चार्ज मूव करेगा तो आपका करंट होगा, देयर इज ए करंट। तो यदि नॉर्मल नहीं है, पैरेलल है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट भी होगा, लेकिन हम देखते हैं उसमें कि करंट फ्लो नहीं करता है। तो इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? नॉर्मल होगी। कैसी होगी? नॉर्मल होगी। ठीक, दिस इज द रीजन। ठीक है, अब हम कुछ चार्ज कंडक्टर की करेंगे बात। ठीक है, कैसा होगा? स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? आउटवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है ना, फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज। स्फेरिकली सिमेट्रिक आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब फील्ड लाइंस है नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तो कैसा होगा ये? स्फेरिकली सिमेट्रिक ये भी होगा। ठीक है, सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। और कैसे डायरेक्शन होगा इसका? इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब थर्ड, फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स क्या? इक्वल एंड अपोजिट। टू इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट चार्जेस। इसमें कैसा होगा? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। कैसा होगा? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। सिलेंड कुछ पूछा जाता है। ठीक है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। ठीक है, और डायरेक्शन कैसा होगा इसका? पैरेलल टू, यहाँ पे लिख लो, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डायरेक्शन कैसा होगा? पैरेलल टू द, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक, ऐसा होगा। अब फोर क्या हो सकता है? इसमें इक्वल एंड अपोजिट है, इसमें हो जाएगा इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस।
field lines of two equal positive charges. Two equal positive charges. टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो उसमें क्या होगा इक्वल पॉजिटिव चार्जेस में एक नल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, नल पॉइंट। और कैसा होगा ये, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। पहले लिख लेते हैं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, और एक नल पॉइंट होगा, क्या होगा, नल पॉइंट, उसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। उसमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ठीक। यस सर। अब देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी of lines of force, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। तो जस्ट मेक दी फिगर so we can clear it। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे चलते हैं। ये थोड़ा गलत बन रहा है, 1 मिनट्स। लाइक दिस, ठीक है, ओके। So we can take just a some area like this, means same area यहाँ पर बना लेते हैं हम, और सेम एरिया यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है, सेम एरिया, ठीक। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओनली वन इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, यहाँ पर टू गुजर रही है, ठीक है। दिस इज द P पॉइंट, दिस इज द Q पॉइंट, ओके। सो जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी पर्टिकुलर एरिया में, एक हम छोटा सा एरिया ले लेंगे, उसको हम उसमें देखेंगे कितनी लाइंस गुजर रही हैं। तो यहाँ पर दिया टू इलेक्ट्रिक लाइन, तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ओके। दिस इज द रीजन ऑफ वीक फील्ड, क्योंकि अंदर एक लाइन जी गुजर रही है, ठीक है, रीजन ऑफ वीक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए,
density of lines of force is proportional to the electric field strength. Density of hold on there. So density of lines of force is proportional to the electric field strength. Electric field strength. Okay, it means E जहां पर एरिया कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा. ठीक है, गेटिंग और नॉट? ठीक, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ओके, देखिए एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फ्लेक्स क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स ये बना लिया ना आपने, Yes. लिख लीजिए. अब आया इलेक्ट्रिक फ्लेक्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, गॉस थ्योरम इसी में आएगा आपका. ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक. इलेक्ट्रिक फ्लेक्स मींस क्या? सम काइंड ऑफ फ्लो. फ्लेक्स मींस क्या? सम काइंड ऑफ फ्लो. मैग्नेटिक फ्लेक्स, इलेक्ट्रिक फ्लेक्स, वाटर फ्लेक्स, जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड फ्लेक्स. ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे से लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए द टर्म फ्लेक्स implies some kind of flow. Some kind of flow. तो फ्लेक्स क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होती है वेक्टर फील्ड की. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स होगा तो किसके प्रॉपर्टी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, जैसे जो भी लग जाएगा इसके पहले मैग्नेटिक फ्लेक्स मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फ्लेक्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सब काइंड ऑफ फ्लो. Flux is the property of any vector field. कोई भी वेक्टर होगा उसमें ये प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फ्लेक्स is the property of electric field. Property of electric field. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? The electric flux
the electric flux through a given area held inside an electric field is the measure of the total number of electric line of force electric lines of force passing normally through that area through that area ठीक है, लिख लीजिए फिर समझाता हूं मैं, ठीक है। Yes, sir. देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग बट ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। इट मींस कोई एरिया ले लो, ठीक है, कोई सरफेस ले लो, उससे कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गुजर रही है, ठीक है, कितनी गुजर रही है, वही फ्लक्स होता है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, ठीक। अब नीचे Yes, लिखिए, sir. नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, if an electric field if an electric field electric field E passes normally through an area element डेल्टा एस। हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेल्टा एस से गुजर रही है, ठीक है, पास हो रही है। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स then the electric flux through this area क्या हो जाएगा यहाँ पर E डेल्टा एस, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। ये कैसे पास हो रही होंगी, मैं क्या वन पिक्चर समझ लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा फाई डी डेल्टा एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया दैट इज फ्लक्स, ओके।
ये आपका सरफेस है, ठीक है। तो इसमें से आपका परपेंडिकुलर, जैसे आपका ये ऐसे है रखा हुआ है, तो उससे जो कोई भी ले लो, हाथ जैसे है, यू कैन सी, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन को खड़ा कर लो, तो उसे सामने से जो निकलेगी दैट 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप इसको देखोगे तो ये लाइन दैट इज नॉर्मली निकल रही है, ठीक है, नॉर्मली निकल रही है, ठीक, नॉर्मली निकल रही है। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लेक्स, ठीक है। यदि आपका थीटा एंगल बना ले, यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थीटा एंगल पे आ जाए, तो क्या होगा, विल सी हियर, देखो। इफ एरिया एलिमेंट delta s makes an angle theta with the uniform field E, then the component of E normal to delta s will be, क्या हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है, will be। तो फ्लक्स क्या होगा आपका, पर यहाँ फिगर बना लेते हैं हम, ठीक है। ठीक, दिस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इसके यहाँ पर थीटा क्या था, जीरो था, ठीक है, थीटा जीरो था। इसका जो इसका वेक्टर होगा ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर इसका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर, क्योंकि नॉर्मली निकलता है वेक्टर, जैसे कोई ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो वेक्टर कैसे, ऐसे वो भी वेक्टर भी निकलेगा, वेक्टर जो होगा ऐसे ही निकलेगा, एन वेक्टर डेल्टा एस का, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को थीटा एंगल पे कर दिया ऐसे, ठीक, ऐसे कर दिया। तो एरिया जो वेक्टर होगा आपका, एरिया वेक्टर, वो इससे क्या, एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, ये थीटा बना लेगा, ठीक है, थीटा, दिस इज द थीटा, ओके। एरिया वेक्टर तो ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टली, मतलब इसके परपेंडिकुलर जाएगा, लेकिन हम इसे देखिएगा हॉरिजॉन्टली जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई इजिकल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ओके। सो इट कॉल्ड ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि हम वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्म बन जाएगा आपका डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ये कहाँ यूज करेंगे, जब वेक्टर फॉर्म में दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कहाँ यूज करेंगे, जब थीटा फॉर्म में दिया होगा। तो वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ओके, दिस इज द ए बी कॉस थीटा। तो इसको और हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसको कैसे बना होगा ये ऐसे है, ठीक है। तो इलेक्ट जैसे मान लिया ये है, तो आपका जो ये होगा दैट इज द एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये रहा होगा आपका ई, ठीक है, थीटा एंगल पे, ये क्या है, थीटा एंगल पर। तो ये हॉरिजॉन्टली इसका कितना होगा, ई कॉस थीटा, हमने देख रखा है वेक्टर में, इसका ई का कंपोनेंट इधर क्या होगा, ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं ई cos theta, okay, this is the flex, okay, this is the flex, this is the flex, okay। अब इसका
यहाँ पर नोट करके लिख लें, फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स इज द स्केलर क्वांटिटी। नोट इलेक्ट्रिक flux is a scalar quantity। फिर इसके बाद यूनिट इसकी निकालिए, यूनिट ऑफ फाई, फ्लेक्स की यूनिट। ठीक है, इसको निकाल के लिखिए। इसका यूनिट हो जाएगा ई के मीन्स न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको वोल्ट इनटू मीटर भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब लिखिए गॉस थ्योरम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। ठीक, तो इसमें पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। स्टेट मतलब इसका स्टेटमेंट बताइए और इसको प्रूव कीजिए। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन भी रहता है। सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑन गॉस थ्योरम। इसके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं बहुत सारे। अब क्वेश्चंस आईटी, नीट एंड बोर्ड में ऑलवेज आस्क्ड, ओके, ऑलवेज आस्क्ड these questions। So Gauss theorem concept is very very important। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं हम। ठीक है, तो किस लिए यूज होता है ये ये लिख लीजिए। ये क्या बताता है? फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, ठीक, तो इसमें लिखिए दिस थ्योरम, दिस थ्योरम, दिस थ्योरम gives a relationship, gives a relationship between the total flux passing through passing through passing through any closed surface, any closed surface, any closed surface, and the net charge, net charge enclosed within the surface, within the surface। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, Yes, sir. Done. हाँ, तो देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी है यहाँ पर। गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, 3 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? टोटल फ्लेक्स, ठीक है, पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, तभी ये लगेगा। और किस पर रिलेशन बताता है? नेट चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस, मतलब जो चार्ज है वो जो आप क्लोज सरफेस है उसके अंदर होना चाहिए। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे? टोटल फ्लेक्स, सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड सरफेस, देन ओनली वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। एंड नेट चार्ज कैसा होना चाहिए? जो अंदर है, बाहर वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके,
दिस इज द वेरी important concepts on गॉस थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या देता है गॉस थ्योरम ने? स्टेटमेंट it states that the total flex जो हमने ऊपर बताया है, ठीक है, टोटल फ्लेक्स, टोटल, एवरी वर्ड्स इट वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसमें ना फिजिक्स में हर एक वर्ड का महत्व होता है, so we have to stress on every words, okay? The total flex through a closed surface, through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed, by the closed surface, by the closed surface, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, द टोटल फ्लेक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन द नेट चार्ज, तो जो फ्लेक्स होगा चार्ज ये 1 अपॉन इनटू नेट चार्ज, इसके टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई नेट चार्ज, चार्ज से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फ्लेक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे इसको लिखोगे आप? मैथमेटिकली it can written as, it can expressed as, कैसे लिख सकते हैं? जो बोल रहा है वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्स इट स्टेज द टोटल फ्लेक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फाई ई इज दी थ्रू ए क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के लिए हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, कि इसमें सरफेस में, ठीक है, ये क्लोज सरफेस ऐसे बना देते हैं हम, थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड, ये तो बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि जो फ्लेक्स है क्लोज सरफेस में 1 अपॉन ये होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं अब फाई ई इज इक्वल टू एस ई डॉट डी एस, हमने हमने देखा है डॉट प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम, ठीक। दृष्टि, यस सर, एक मिनट। हाँ लिख लो, अच्छे से लिख लो, एक बार जितना पढ़ा है ना अभी वो चेक करके मुझे बताओ कहाँ डाउट्स हो रहा है अभी, प्रूविंग फिर कल करेंगे, ठीक। हम्म
सर इसके न्यूमेरिकल जो आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। हाँ फार्मूला बेस आएंगे, बहुत फार्मूला, मतलब जो हमने स्टेटमेंट लिखा ना उसको फॉलो करना, ठीक है। दो टाइप्स के यस। आएंगे, पहला लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो होंगे वो वेक्टर फॉर्म में होंगे। तो a डॉट बी, वी शुड नो a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो i डॉट आई क्या होता है, 1, ठीक है। j डॉट जे 1, k डॉट के 1। वन। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते थे, आई आई को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, जे जे को के को, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाता था ना, तो बस उसका यूज होगा। अभी हम जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। दिखाना पड़ता है कि पास टू है तो कैसा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसी बिहेव करेंगी, ये सब दिखाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, सिमेट्री होंगी, सिलेंड्रिकली होंगी। तो पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगी, और जब हमारी इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं तो सिलेंड्रिकली होंगी। कैसे होंगे, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होंगी, ठीक है। प्लेन के लिए नॉर्मली प्लेन होती है, ठीक है। उसके बाद है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वीक कहाँ होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहां वो स्ट्रेंथ वीक होगा। पास पास में होंगी लाइनें तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। उसके बाद हमने देखा एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर नथिंग बट परपेंडिकुलर, जो ये नहीं है, ये परपेंडिकुलर सरफेस है इसके परपेंडिकुलर। अब इसको ऐसे घुमा दोगे तो इधर हो जाएंगे, ईस्ट की तरफ, उधर वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होता है ये कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है वो बताया हमने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फ्लो होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जैसे 10 लाइन गुजर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग, तो इसको ई डॉट डेल्टा एस बोल दिया हमने, ठीक है। अब थीटा एंगल पे हो जाए, ये थीटा एंगल पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। फिर इसका हमने देख लिया स्केलर क्वांटिटी है यूनिट, ये देख लिया। फिर गॉस थ्योरम हमने देखा, गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स क्लोज सरफेस नेट चार्ज के बारे में बताता है, ठीक है। स्टेटमेंट पूछा जाता है तो वी कैन राइट लाइक दिस, सो दिस इज द आवर, ठीक है।